أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. محترم بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کی روشنی میں میں آج کی ملاقات میں ظلم کی شناعت اور قباحت کے عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کا مقام نہ دینا، کسی بھی چیز کو اس کا صحیح مقام عطا نہ کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے. جو چیز جس مقام کی مستحق ہے اس چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، حقدار کو حق سے محروم کرنا ظلم کہلاتا ہے. ظلم کسی کی جان پہ ناحق حملہ کرنا، کسی کے مال کو ناحق ہڑپ کرنا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا، کسی کو ناحق ڈانٹنا، کسی کو ناحق مارنا، کسی پہ ناحق غصہ کرنا، ظلم کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں. شریعت نے ظلم کو سخت ناپسند کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو عدل و انصاف کی بنیاد پہ قائم کیا ہے. یہ کائنات عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کو ظلم سخت ناپسند ہے اور عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے.
शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह लिखते हैं कि इन्नल्लाह तआला लयुकीमु दौलतल आदिलतल काफिरा व यज़हबु बिद्दौलतिल मुस्लिमतिल जाइरा। फरमाते हैं कि अगर मुसलमान हुक्मरान हो, मुसलमान हुकूमत हो, लेकिन अगर वो अपनी रियाया पर जुल्म कर रही हो, अल्लाह ताला ऐसी मुस्लिम हुकूमत का खातिमा करेगा जो अपनी रियाया पे जुल्म कर रही हो, और उसकी जगह गैर मुस्लिम हुकूमत जो रियाया को अपने हुकूक देती हो, अल्लाह ताला गैर मुस्लिम हुकूमत को कायम करेगा, उसको उरूज अता करेगा, उसको तरक्की अता करेगा। जुल्म अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आप फरमाते हैं लोगों जुल्म से बचो, इसलिए कि जुल्म कल क़ियामत के रोज तारीकियों की शक्ल में आएगा और जालिम कल क़ियामत के रोज तारीकियों में घिरा हुआ होगा। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी इन्नी हर्रमतुज़्ज़ुल्म अला नफ्सी फला तज़ालमू। ऐ बंदो, मैंने जुल्म को अपने आप पर हराम कर लिया है, मैंने जुल्म को अपने आप पर हराम कर लिया है। फला तज़ालमू, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे पे जुल्म ना किया करो। अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने आप पे हराम कर लिया। वो हमेशा इंसाफ करता है और हश्र की अदालत में भी उसका ऐसा इंसाफ होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया में किसी बेसींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी पे ज्यादती की होगी तो कल क़ियामत के रोज उस बेसींग वाली बकरी को मौका दिया जाएगा कि सींग वाली बकरी जिसने के तुझ पे जुल्म किया था उसे बदला ले ले। गौर करो, इंसान तो इंसान, वो हैवानात जिनके लिए कानून जजा व सजा नहीं है, उनके दरमियान जब ऐसा इंसाफ होगा तो इंसानों के दरमियान कैसा इंसाफ रब्बुल आलमीन फरमाएगा। तो इंसाफ अल्लाह ताला को बेहद अजीज है और ना इंसाफी और जुल्म अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंदीदा है। जुल्म की बड़ी भारी कीमत इंसान को चुकानी पड़ेगी, जुल्म की बड़ी भारी कीमत इंसान को चुकानी पड़ेगी कल क़ियामत के रोज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स दुनिया में नाहक किसी की एक बालिश जमीन भी हड़प करता है, एक बालिश जमीन अगर कोई किसी की नाहक हड़प करता है तो कल उसके गले में 7 जमीनों का तोक डाला जाएगा, 7 जमीनों का तोक डाला जाएगा एक बालिश जमीन नाहक हड़प करने पर। जुल्म की कीमत, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, नेकियों की शक्ल में चुकानी पड़ेगी। मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा था कि जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं, जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास दीनार ना हो, जिसके पास दिरहम ना हो। मल्ला दीनार लहू वला दिरहम, जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं उसे मुफलिस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ियामत के दिन का मुफलिस उसको नहीं कहते, जिसके पास दीनार और दिरहम नहीं वो तो दुनिया में मुफलिस कहलाता है, लेकिन क़ियामत के दिन का मुफलिस वो है कि जो ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, ढेर सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन साथ साथ उसके नामा आमाल में जुल्म की दसियों दास्तानें होंगी। कितनों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया होगा, कितनों की जायदाद नाहक हड़प किया होगा, कितनों को नाहक मारा होगा, कितनों को जिंदगी में सताया होगा, कितनों को जिंदगी में तकलीफ दी होगी, कितनों को जिंदगी में परेशान किया होगा, कितनों पे दुनिया में नाहक गुस्सा किया होगा, दुनिया में कितनों को नाहक मारा होगा। नेकियों के साथ साथ उसके आमाल के दफ्तर में ढेर सारी जुल्म की दास्तानें भी होंगी और ये मजलूमीन आ जाएंगे। कोई कहेगा परवरदिगारा ये वो शख्स है जिसने दुनिया में मेरी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया था। कोई मजलूम आएगा कहेगा परवरदिगारा ये वो शख्स है जिसने दुनिया में नाहक मेरी जायदाद हड़पती थी। कोई आएगा कहेगा परवरदिगारा ये वो शख्स है जिसने दुनिया में मुझे नाहक डांटा था, नाहक गुस्सा किया था। कोई मजलूम आएगा कहेगा परवरदिगारा ये वो शख्स है जो दुनिया में मुझे मुख्तलिफ अंदाज में सताया करता था। मजलूमीन के दरमियान ये शख्स घिर जाएगा।
मजलूमीन अपना हक मांगेंगे और अल्लाह, जाहिर बात है कि वहां देने के लिए दिरहम तो नहीं होंगे, वहां देने के लिए दीनार तो नहीं होंगे, वहां रुपया पैसा तो नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे? इस शख्स की नेकियां लेकर उन मजलूमीन को दे देंगे। इस जालिम के पास जो नेकियां होंगी उसकी नेकियों को लेकर उन मजलूमों के दरमियान बांट देंगे। इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी लेकिन लोगों के हुकूक बाकी रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के हुकूक बाकी रहेंगे उनके गुनाह लेकर उन गुनाहों का बोझ इस जालिम पर डाल देंगे। गौर करो भाइयों, दुनिया में इस 40, 50, 60, 70 साला जिंदगी के लिए इंसान कितनों को सताता है, कितनों पे जुल्म करता है, लेकिन उसकी कितनी भारी कीमत को कल उसे हश्र के मैदान में चुकानी पड़ेगी कि इस आर्जी दुनिया की खातिर उसने अपनी अबदी और हमेशा की दुनिया का घाटा कर लिया, हमेशा की जिंदगी का खसारा कर लिया। जुल्म की कीमत इंसान को सिर्फ आखिरत ही में नहीं, जुल्म की कीमत इंसान को इस दुनिया में भी चुकानी पड़ेगी, इस दुनिया में भी चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, बहुत मोहलत देता है, बहुत मोहलत देता है। अल्लाह ताला के पास देर है मगर अंधेर नहीं, अल्लाह के पास देर है मगर अंधेर नहीं। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, लेकिन जब मोहलत देने के बाद पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है कि लम्हे भर के लिए उसको संभलने का मौका नहीं देता। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह ताला जब जालिम बस्तियों पे गिरफ्त करता है तो उसकी गिरफ्त ऐसी ही हुआ करती है। कैसी? जैसे सूरह हूद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा करके यह आयत बयान फरमाई, इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, उसकी पकड़ बड़ी अलमनाक है, उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। जुल्म की कीमत जालिम को दुनिया में भी चुकानी पड़ेगी। याद रखना, दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा आखिरत से पहले अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भी देता है। पहला गुनाह जुल्म है और दूसरा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप को तकलीफ देना और माँ बाप को सताना। जब जालिम किसी पे जुल्म करता है, किसी को मजबूर समझकर, किसी को कमजोर समझ के रगड़ता है, कुचलता है, मसलता है, नाहक सताता है, याद रखना किसी को कमजोर न समझना, इसलिए कि जो कमजोर होता है हकीकत में वही ताकतवर होता है। इसलिए कि कमजोरों के साथ रब्बुल आलमीन की ताकत होती है, कमजोरों, ज़ईफों, नादारों के साथ उसकी नुसरत होती है, उसकी ताईद होती है। इसलिए दुनिया जिसको कमजोर समझती है हकीकत में वो ताकत वाला होता है। किसी को कमजोर समझ के सताना नहीं, किसी को कमजोर समझ के परेशान नहीं करना। अगर कोई शख्स साहिब असर और रसूख किसी कमजोर को सताता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है और उस मजलूम की जबानी, जिस पे के सितम हुआ है, जिसको के सताया गया है, अगर उस मजलूम की जबानी बद्दुआ निकल जाए, मजलूम की जबान से आह निकल जाए, ये आह और ये बद्दुआ ऐसी तासीर रखती है कि जब मजलूम की जबान से बद्दुआ निकलती है वो सीधे अर्शे इलाही को जाके खिटखिटाती है, अर्शे इलाही के दरवाजों पे दस्तक देती है। रब्बुल आलमीन उस वक्त फरमाता है बेइज्जती व जलाली, अपने इज्जत जलाल की कसम खा के रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बेइज्जती व जलाली लअंसुरन्नहु वलौ बअदा हीन, मेरे इज्जत जलाल की कसम मैं अपने मजलूम बंदे की मदद करूंगा, मेरी मदद जरूर आएगी, भले से देर से सही, मेरे मजलूम बंदे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सही, मगर दुनिया ही में मेरी मदद जरूर आएगी। लअंसुरन्नहु वलौ बअदा हीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा, दावत व तबलीग के लिए काजी बनाकर भेजा। तो मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को जहां और सारी नसीहतें की, उनमें एक नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाई कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। आपने फरमाया कि ऐ मुआज़ बिन जबल,
यमन जा रहे हो, याद रखना मजलूम की बद्दुआ से बचना, मजलूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई हिजाब नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं। वो सीधे अर्श इलाही के दरवाजों को खिटखिटाती है। मजलूम की बद्दुआ कबूल हो जाती है, सुन ली जाती है और दुनिया ही में जालिम का बुरा होता है। अल्लाह ताला मजलूम के सामने जालिम को एक न एक दिन रुसवा करके रखता है। भाइयों याद रखना, याद रखना, दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला के पास उसूल अलग है और बद्दुआ की कबूलियत के अल्लाह ताला के पास उसूल अलग है। दुआ की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, दुआ सिर्फ मोमिन की कबूल होगी, दुआ किसी काफिर और मुशरिक की कबूल ना होगी। दुआ की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, लेकिन याद रखना बद्दुआ की कबूलियत के लिए ईमान शर्त नहीं। काफिर को भी सताया जाए, काफिर पे भी जुल्म हो, काफिर की ज़बान से आह निकले, काफिर की ज़बान से बद्दुआ निकले, काफिर की बद्दुआ भी लग के रह जाएगी और आदमी का तकवा, उसकी दीनदारी उसको बचा नहीं सकेगी बद्दुआ के असर से, अगर उसने किसी पे जुल्म किया है। मजलूम की आह में, मजलूम की बद्दुआ में वो तासीर रहती है कि जालिम के पास कारून का खजाना भी हो, वो खाकिस्तर हो के रह जाता है, वो जल कर रह जाता है। इसलिए भाइयों, जिंदगी में जुल्म से बचना, जुल्म से बचना, जुल्म से बचना। खिलाफत फारूकी का ये वाक़या कुतुब हदीस में हमें मिलता है और तारीखी कुतुब में भी हमें मिलता है कि कूफा के गवर्नर जलीलुल कद्र सहाबी साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बड़े जलीलुल कद्र सहाबी जो रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। एक मर्तबे अहले कूफा ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास शिकायत कर दी कि साद बिन अबी वक्कास जो हमारे गवर्नर हैं, कूफा के गवर्नर हैं, ये इंसाफ नहीं करते हमारे दरमियान, हमारे साथ जिहाद नहीं करते, जिहाद में शिरकत नहीं करते, यहां तक कि उन्हें नमाज पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दरबार में शिकायत पहुंची। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उन्हें माजूल कर दिया, फौरन उन्हें माजूल कर दिया। और माजूल करने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहकीक के लिए एक कमेटी तश्कील दी और उसको कूफा रवाना किया। ये कमेटी हर नमाज में कूफा की एक मस्जिद जाया करती थी और मस्जिद जाके तहकीक किया करती थी, लोगों से साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछा करती थी। एक जगह एक मस्जिद में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने भरी मजलिस में मजमे आम के सामने ये कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूं कि साद बिन अबी वक्कास वो हमारे दरमियान इंसाफ नहीं करते थे, वो जिहाद में शरीक नहीं होते थे, हकदारों को हक नहीं दिया करते थे, हत्ता कि इतने बड़े गवर्नर रहकर नमाज पढ़ना भी इन्हें ठीक से नहीं आता है। गौर करो कि साहबी रसूल साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु पे क्या गुजरी होगी। इतने जलीलुल कद्र सहाबी, अल्लाहु अकबर, के रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं, साबिकीन अव्वलीन में से हैं। और ऐसे सहाबी के सिलसिले में भरी मजलिस में मजमे आम के सामने नौजुबिल्लाह ऐसे इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं। एक आह निकली साद रजी अल्लाह अन्हु की ज़बानी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि साद बिन अबी वक्कास ऐसे सहाबी हैं कि जिनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पे दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अस्तजिब लिसादिन इज़ा दआक, ऐ अल्लाह साद बिन अबी वक्कास जब भी दुआ करे उनकी दुआ को कबूल फरमाना। ऐ अल्लाह साद बिन अबी वक्कास जब भी दुआ करे उनकी दुआ को कबूल फरमाना। मुस्तजाबुद्दावात थे ये सहाबी, ये किसी भी मामले में दुआ करें इनकी दुआएं कबूल हो जाती थी। ऐसे सहाबी मजमुए आम में नौजुबिल्लाह इस शख्स ने इनको रुसवा किया और कहा कि ये नमाज भी पढ़ना नहीं जानते। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु की ज़बानी आह निकली। उन्होंने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, परवरदिगारा अगर ये शख्स झूठा हो जो कह रहा है कि मुझे नमाज भी पढ़ना नहीं आता, परवरदिगारा अगर ये शख्स झूठा हो तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसको लंबी हयात दे दे, इसकी जिंदगी लंबी कर दे। अच्छी
लंबी उम्र और लंबी हयात की दुआ तो अच्छी दुआ है, लेकिन लंबी उम्र अगर फ़क्र फाक़े के साथ हो, लंबी उम्र अगर गुर्बत के साथ हो तो अजाब है। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह इसकी हयात लंबी कर दे और ऐ अल्लाह इसको फ़कीर बना दे, कंगाल बना दे, मोहताज बना दे, मुफलिस बना दे। और तीसरी बद्दुआ की वअर्रिज़हु लिल फितन, और परवरदिगारा इस शख्स को फितनों में मुब्तला कर दे। मुस्तजाबुद्दावात सहाबी थे, उनकी जबान से बद्दुआ निकली और ये क्यों ना रंग लाए और क्यों ना रंग दिखाए। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने देखा कि ये इस शख्स ने बड़ी तवील हयात पाई, बड़ी तवील जिंदगी पाई, गरीब हो गया, कंगाल हो गया, मोहताज हो गया, मुफलिस हो गया और बुढ़ापे में लोगों से सड़कों पर मांगे हुए फिरता था, लोगों के आगे हाथ फैलाए हुए फिरता था। और इस बुढ़ापे में कि उसकी पलकें लटकने लगी थी, इस बुढ़ापे में रास्ते से गुजरते हुए लड़कियों को छेड़ते हुए गुजरता था, लड़कियों और औरतों को छेड़ते हुए गुजरता था। वो जो तीसरी बद्दुआ थी कि अर्रिज़हु लिल फितन, कि परवरदिगार इस शख्स को फितनों में मुब्तला कर दे। वो खुद कहा करता था, जब लोग पूछते थे, वो खुद कहा करता था अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, शेखुन मफ्तून असाबतनी दावत साद, शेखुन मफ्तून असाबतनी दावत साद, के फितने में मुब्तला एक बूढ़ा हूं मैं, मुझे साद बिन नबी वक्कास की बद्दुआ लग चुकी है, मुझे साद बिन नबी वक्कास की बद्दुआ लाहिक हो चुकी है। भाइयों याद रखना, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। किसी को कमजोर समझकर, किसी को लाचार समझकर, किसी को मजबूर समझ के मत डांटा करो, मत गुस्सा किया करो, मत सताया करो, मत परेशान किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुल्म है, वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। आपने फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, मतलुल गनी जुल्मुन, एक मालदार का टाल मटोल करना भी जुल्म है। एक मालदार, उस किसी को पैसा देना है, किसी से कर्ज लिया था या बहरहाल किसी का हक उस पर आयद होता है, वो पैसा रखते हुए सामने वाले को उसका हक नहीं देता है, टाल मटोल करता है, कल आओ, परसों आओ, महीना बाद आओ, 6 महीने बाद आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार का टाल मटोल करना भी जुल्म है। जुल्म की हर शक्ल से बचो, जुल्म की हर रिवायत से बचो, इसलिए कि जुल्म का अंजाम आखिरत से पहले दुनिया ही में बुरा होता है। अल्लाह ताला मजलूम के सामने जालिम को रुसवा करके मजलूम के दिल को ठंडक नसीब करता है। ऐसे ही एक वाकया अहदे बनु उमय्या का हमें मिलता है कुतुब अहादीस में। अशरे मुबश्शरा में एक सहाबी हैं सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल के बेटे हैं। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल जो ज़माने जाहिलियत में तौहीद पर कायम थे, हुनफा में इनका शुमार होता है। इनके फर्जंद थे सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो 10 सहाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नशिस्त में और एक मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी। उनमें से आखिरी और 10वें सहाबी हैं सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ऐसे जलील कद्र सहाबी पर मरवान बिन हकम के दौर में अहदे बनु उमय्या में एक खातून जिसका नाम अरवा बिनते औस था, उस खातून ने सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इल्जाम लगाया कि सईद बिन ज़ैद ने नाहक मेरी जमीन हड़प कर ली है, नाहक मेरी जमीन हड़प कर ली है। अल्लाहु अकबर। इतने जलील कदर सहाबी और उन पे इल्जाम लग रहा है कि इन्होंने नाहक जमीन हड़प कर ली है। मरवान बिन हकम ने, जो कि मदीने के गवर्नर थे, उन्होंने सईद बिन ज़ैद को बुलाया रजी अल्लाह अन्हु, बुला के पूछा। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने बरात का इजहार किया और कहा कि ये औरत झूठी है, इसका इल्जाम झूठा है, ये गलत कह रही है, ये झूठ कह रही है। मरवान बिन हकम को भी यकीन हो गया सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु पर इस औरत का इल्जाम इस कदर शाक गुजरा, इतनी तकलीफ हुई, उनकी जबान से भी आह निकल गई, उनकी जबान से भी आह निकल गई, उनकी जबान से भी बद्दुआ निकल गई। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह, अगर ये खातून झूठी हो, अगर ये औरत झूठी हो, ये खातून झूठी हो, फ़अअमी बसरहा, अल्लाह इसको नाबीना कर दे, इस औरत की बीनाई छीन ले, वक़्तुलहा फी अर्दिहा, और अल्लाह इसी सरजमीन में इसकी मौत दे दे,
اسی سرزمین میں، جس سرزمین کے بارے میں، اس زمین کے اس حصے میں جس کے بارے میں اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے ناحق ہڑپ کیا ہے، اے اللہ اسی زمین میں اسے مار دے۔ چنانچہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت نابینا ہو گئی، آخری زندگی میں اس کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئی، اور ایک شام ایک رات جبکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہی تھی، جب وہ زمین کے اس علاقے سے گزر رہی تھی جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعید بن زید نے ناحق ہڑپ کر لیا ہے، وہاں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں گری اور وہیں مر گئی۔ بھائیو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اور اندھیر نہیں ہے۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں، ان کو پریشان نہ کرنا، ان کو نہ ستانا، کسی بھی بندے کو نہ ستانا، کسی بھی بندے کو ستانا ظلم ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں ان کو ستانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی ہو، میرے کسی ولی سے دشمنی کی ہو، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کو نہ ستانا، جس پہ بھی ہماری جانب سے ظلم ہوا ہے، آخرت اور حشر کی عدالت قائم ہونے سے پہلے اسی دنیا میں فیصلہ کر لو، حقدار کو اس کا حق واپس کر دو، حقدار کو اس کا حق لوٹا دو، ورنہ اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی آخرت اپنی بگاڑ لیں گے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کر کے ظلم کیا ہے، ہم نے کسی کی غیبت کر کے کسی پہ ظلم کیا ہے، تو کہا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ معافی مانگنے کا، کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے سامنے معافی مانگی جائے، اس سے کہا جائے کہ بھائی معاف کر دو، میں نے تمہاری غیبت کی ہے، میں نے فلاں وقت فلاں مجلس میں فلاں لوگوں کے سامنے تمہاری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے درگزر کر دو۔ اور اگر اندیشہ یہ ہو کہ سامنے جا کر معافی مانگنے سے اور سامنے جا کر بتانے سے وہ ہمیں معاف کرنے کے بجائے، ہم سے خوش ہونے کے بجائے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، بات بننے کے بجائے بات بگڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں ایسا شخص وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور جس مجلس میں جن لوگوں کے سامنے اس شخص کی برائی بیان کی تھی، غیبت کی تھی، اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے وقت ملنے پر اس شخص کی کسی خوبی کا تذکرہ کر دے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی غیبت کا جو ظلم اس نے کسی پر کیا تھا اس ظلم سے نجات مل جائے گی۔ تو بھائیو، مومن کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے ذی علم صحابی اور نیک صحابی، متقی صحابی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ اور کوئی آڑ نہیں ہوا کرتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا تقوی اپنی جگہ، آدمی کی نیکی اپنی جگہ، آدمی کی صالحیت اپنی جگہ، لیکن اگر اس کی جانب سے کسی پہ ظلم ہو جائے، اس کا تقوی اس ظلم کے انجام سے اسے بچا نہیں سکتا، اس کی نیکی، اس کی صالحیت اس ظلم کے انجام سے اسے بچا نہیں سکتی، بلکہ ظلم کا انجام اسے دیکھنا پڑے گا، ظلم کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قدم قدم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں ظلم، ہمارے گھرانوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ آج عدالتوں میں جتنے فیصلے ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جا کر دیکھو، بھائی کا مقدمہ بھائی پر، اولاد کا مقدمہ والدین پر، بھائی کا مقدمہ بہن پر، رشتہ دار کا مقدمہ رشتہ دار پر، دوست کا مقدمہ دوست پر۔ آج ہم نعوذ باللہ وکیلوں کے بل پر ہم جھوٹ کو سچ بنانا چاہتے ہیں، باطل کو حق بنانا چاہتے ہیں، اور جس زمین میں ہمارا حق نہیں ہوتا ہے وہاں ہم اپنا حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس لیے حشر کی عدالت قائم ہونے سے پہلے جن کے حق میں بھی ہماری جانب سے ظلم ہوا
ہے معافی مانگ لیں اور کسی کا حق اگر ہمارے پاس ہے واپس کر دیں. اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں خیر و برکت ہے. ورنہ جیسا کہ ہم نے کہا حشر کے میدان میں بڑی بھاری قیمت ظلم کی چکانی پڑے گی, ایک کے کئی دینے پڑیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو, سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پہ ظلم بھی نہ کریں اور ہم پہ ظلم بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے جو دعائیں آپ پڑھتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اظلم. اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے. گھر سے نکلتے ہوئے آپ دیکھو کتنی پیاری دعا پڑھتے تھے. کہا کہ پروردگارہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جو گھر سے نکل رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس نکلنے میں میری جانب سے کسی پہ ظلم نہ ہو. اب جا کے میں جو کاروبار کروں گا, اب جا کر میں جو بزنس کروں گا, اب جا کر جو لوگوں سے میں معاملات کروں گا, اے اللہ میری جانب سے کسی پہ ظلم نہ ہو اور کوئی دوسرا بھی مجھ پہ ظلم نہ کرے, نہ میں ظالم بنوں نہ میں مظلوم بنوں. کتنی پیاری دعا ہے, اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو ظلم کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.